According to this concept, acid is a substance which give H plus ion in aqueous solution. And second one, the substance which give OH minus ion is considered as a base. That's clear? Okay. Now, in last lecture we learned about the strong acid and strong base. Acid and base. Okay. Now, for acid there is one concept that is called as basicity. So for acid we count basicity, and for base count acidicity. रिवर्स, बेस के लिए एसिडिसिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी. ओके. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? ओके. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू Arrhenius? The substance which give H plus ion is called as acid, and the substance which give OH minus ion is called as base. सेम कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है. बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ H plus ion given, that is called as basicity. What will be acidicity? Number of OH minus ion given, that is called as acidicity. Okay. Now I am writing your hydro HCl. This HCl is acid or base? Acid. In one molecule of HCl, how many acidic hydrogens are there? One. So this HCl can donate maximum how many hydrogen? One. How many H plus? One. So this HCl will give only one H plus ion and one Cl minus. कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसिड कितने H plus ion देगा? That depends on not on their molecular formula. मतलब molecular formula देख के नहीं पता लगा सकते हैं. For that we have to draw the structure of that molecule, and on the basis of structure we can conclude how many H plus ion it will donate. Same condition for base. Okay. So in this HCl, this one hydrogen is acidic. After dissociation, it is converted into H plus and Cl minus. How many H plus ion donated? One. So its basicity will be 1. Its basicity will be 1. So number of H plus ion given. How many number of H plus ion? 1. So for HCl, basicity will be 1. Like electron, at a time you can transfer how many electrons? 1. At a time you can break how many bonds? 1. Similarly, at a time you can donate only one H plus ion at a time or one OH minus at a time. If any base having two OH minus, example MgOH by 2, how many OH are there? So how many OH they can donate? But at a time they can donate only one. So it will donate one OH initially and one OH after. Okay. Here second acid, that is called as H2SO4. How many H plus ion they can donate? For that you must have to draw the structure. I am drawing the structure of H2SO4. This is H attached to O attached to S double bond O double bond O attached to OH. Okay, that's okay. How many acidic hydrogens are there? How many acidic hydrogens are there? What is the meaning of acidic hydrogen? The hydrogen which is directly attached to strong electronegative atom. How many total hydrogens are there? 2. This hydrogen attached to oxygen, and oxygen is a strong electronegative atom. This hydrogen attached to oxygen, and this oxygen is a strong electronegative atom. So here having how many acidic hydrogen? 2. So it can donate how many H plus ion? 2. How many H plus ion? 2. It means its basicity will be 2. Its basicity will be 2. Done? समझा नहीं समझा? ठीक है. I am writing some name here. H2SO4. Name? Sulfuric
sulfuric acid. Second acid H2SO3, it is called as sulfurous acid. It is called as sulfurous acid. Next, third, I am writing here HClO4. Its name is perchloric acid. Number 4, HClO3, chloric acid. Number 5, HClO2, chlorous acid. Number 6, HClO, it is hypochlorous acid. It is hypochlorous acid. Number 7, H3PO4, it is phosphoric acid. Number 8, H3PO3, that is phosphorus acid. Number 9, H3PO2, it is called as hypophosphorus acid. These are name of some acids जो आपको याद रखने हैं. ओके, अब देखेंगे बेसिसिटी. तो which acid will form its basicity? HCl is over, H2SO4 is over. I am writing about H2SO3. Is this structure correct? How to check? All atoms satisfy their valency. Oxidation number. Here, if we break the bond, all bonds. So what will be the charge on sulfur? +6. So here oxidation number of sulfur is +6. Count here. One hydrogen is +1, two hydrogen is +2, one oxygen is -2, four oxygens are -8. -8 + 2. Right side. More. Structure is okay. Next is sulfurous acid. Oxidation number of sulfur one hydrogen +1, two hydrogen +2, one oxygen -2, three oxygen -6, -6 + 2 -4. राइट साइड. तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी +4. So I am writing the structure H attached to O attached to S double bond O attached to H. Total how many hydrogens are there? 2. How many hydrogens are acidic? 2. Both. So this is acidic hydrogen 1, this is acidic hydrogen 2. So number of acidic hydrogens are 2. So how many H plus N they can donate? 2. So number of H plus N given are 2. So its basicity will be 2. Okay. कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से किस एसिड का बेसिसिटी 1 है, किसका 2 है, किसका 3 है. After that, number 4, HClO4. Structure H attached to O attached to Cl double bond O double bond O double bond O. So what will be the oxidation number of sulfur here? Sorry, chlorine. Plus 1 hydrogen is +1, one oxygen is -2, four oxygens are -8 +1 -7. Right side +7. If you break the all bonds, the oxidation number of chlorine will be +7. So structure is okay. Total how many hydrogens are there? 1. Total hydrogens are 1. How many acidic hydrogens are there? 1. So it can donate maximum 1 H plus ion. So its basicity will be 1. Okay. In all these molecules, only one hydrogen is there. So they can donate only 1. So for all these 3 1. All these 4 1, basicity will be 1. Next, H3PO4.
जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है फास्फोरस जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ट्रिक अप्लाई करते हैं। पहली ट्रिक, बीच में लिखेंगे फास्फोरस को 1 डबल बॉन्ड O और एक OH लिखेंगे। पहला काम 1 डबल बॉन्ड O and 1 will be OH, बाकी अब फर्क बैठो। How many hydrogens are here? 3. How many you used? How many remains? पकड़ के रखो। How many oxygen is here? How many used? Remaining? So 2 hydrogens and 2 oxygens are there. Suppose I am writing here P double bond O because phosphorus can make 5 bonds. In this molecule, in this structure, phosphorus form how many bonds? 5 bonds. So valence is satisfied. 1 oxygen and 2 hydrogens still remains. मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला गलत है। If I am writing here OH and here OH, is it okay? Total hydrogens are 3. Use phosphorus 1, use oxygen are 4. Oxygens are 4. Total how many hydrogens are there? 3. Out of 3 hydrogen, how many are the acidic hydrogen? 3. All 3. So this is 1 acidic hydrogen, this is 2nd acidic hydrogen, this is 3rd acidic hydrogen. So how many acidic hydrogen they can donate? 3. It means the basicity of this molecule will be 3. Done? Okay? तो इसकी बात हो गई क्लियर। This one, how many hydrogens are there? 3. तो कितने देगा? 3. स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ट्रिक क्या है? P double bond O and 1 OH। क्या बचा है उसको देखो। What remains? 2 hydrogen, 1 oxygen. If you write double bond O, so 2 hydrogens still remain. So this is not possible. If I am writing here 1 hydrogen, what remains now? 1 hydrogen. Phosphorus valence here 5. But bond कितने बनाए? This 1 bond is there, so this will be H. Okay, now all atoms satisfied their valency. Okay, total hydrogens are 3. Out of 3, how many are the acidic hydrogen? 2. Acidic means which is attached to strong electronegative atom. So this is 1 acidic hydrogen, this is 2nd acidic hydrogen. तो देखने में लगता है कि 3 H+ लेने चाहिए, but actually they are donating only 2 H+. So most of the time they are asking about this one. Why? Confusing. मॉलिक्यूल में दिखते हाइड्रोजन कुछ और है और देने वाला हाइड्रोजन कुछ और है. That's why. So basicity of this molecule will be 2. Done? Next, number 7. सोचना है, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं इसके बारे में, और बिना सोचे आंसर दे देना है। कॉपी टेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है। Okay? First, draw the structure. P double bond O and 1 OH will be there. What remains now? 2 hydrogen. On oxygen? 0. So, here having 1 hydrogen, here having 2nd hydrogen. Total hydrogens are 3. Out of 3 hydrogen, how many are acidic? 1. Means its basicity will be 1. ठीक है? तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख के कभी नहीं जाना, स्ट्रक्चर देख के कभी नहीं जाना कि वो कैसा होगा, समझा नहीं समझा? ठीक है। अब जैसे एसिड के लिए देखा, वैसे किसके लिए होगा? बेस के लिए। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मोनो बेसिक एसिड, मींस द एसिड्स हैविंग basicity equals to 1. Second will be di-basic acid, means acids having basicity 2. Third will be
basic acid. This one mono. This one, this one, this one, this one, this one. समझा नहीं समझा? ठीक है, तो एक किसके लिए है? एसिड के लिए. बेस के लिए क्या होगा? मोनो एसिडिक बेस. नेक्स्ट विल बी डाई एसिडिक बेस. नेक्स्ट विल बी ट्राई एसिडिक बेस. समझा नहीं समझा? I am writing here MgOH by 2. How many OH they can donate? What will be the structure? Mg attached to O attached to H attached to O attached to H. Okay. Here bond between non-metal and non-metal. Here bond between metal and non-metal. Magnesium having lower electronegativity than hydrogen. So which bond will break? Mg and O. It will get minus, this will plus. This will be minus and this will be plus. So how many OH minus ion are there? Means their acidity will be 2. Okay. I am writing here NaOH. How much? 1. I am writing here AlOH by 3. ओके, समझा नहीं समझा? ठीक है. अब ये सभी के सभी जो है इनके लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं ऑक्सो एसिड या तो ऑक्सी एसिड. Why they are called as oxo acid? Okay, why acid is there? Because they are donating H plus ion, common sense. Why? Because they are donating H plus ion. Why oxo acid? Because acidic hydrogen is directly attached to oxygen. ठीक है? Why they are called as oxy acid? Because acidic hydrogen is directly attached to oxygen. तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. इस मॉलिक्यूल पे अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन है? इसमें कौन है? इसमें कौन है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस. इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन. इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर. So these are oxy acids of sulfur, oxy acids of chlorine and oxy acids of समझा नहीं समझा? ठीक है. So this is about the Arrhenius concept and classification of acid and base. Right on.
स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है? तो लिखने के लिए टाइम दे दूंगा मैं आपको, इरेज करते जाऊंगा। मतलब किसी ने पूछा किसी का बेसिसिटी कितना है, तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर बताएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, H3PO4, H3PO3 और H3PO। What is the definition of oxyacid? The acid in which acidic hydrogen is directly attached to oxygen. This is oxyacid of phosphorus, oxyacid of chlorine, oxyacid of sulfur. ठीक है? कॉपी क्लोज कर दीजिए। So pH of acid will be less than 7, greater than 7. Less than 7. Okay. Now, what do you think about this one? It will be acid, it will be base. Why? और H तो है नहीं देने के लिए, तो बचा क्या? ये क्या होना चाहिए? Acid. If it will be acid, then its pH will be less than 7. Okay? But in reality, its pH is greater than 7. It means this is not an acid, this is base. और ये base क्यों है? ये नहीं बता पाया. So that is the limitation of Arrhenius theory. क्योंकि दूसरे थ्योरी की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, CaO एसिड और बेस, ये नहीं बताएगा। क्यों? ये उनके बारे में बताता है जिसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, ये इसके बारे में नहीं बताएगा। आई एम आस्किंग अबाउट CO3-2, नहीं बताएगा। I am asking about BF3, नहीं बताएगा। समझे? तो टोटल जो 4 थ्योरी पढ़ते हैं इनमें से कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इसलिए चारों थ्योरी को साथ में पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है सेकंड थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं ब्रोनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी या लॉरी कंसेप्ट। मैं इसको याद रखता हूँ सिंपल तरीके से, दैट इज BPL। नाम सुना है? हाँ, जो भी है, मीनिंग नहीं पूछा, सिर्फ पता है कि नहीं है। ठीक है? ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा। B स्टैंड फॉर ब्रोनस्टेड, L स्टैंड फॉर लॉरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द सब्सटेंस which give proton in bracket H plus ion is considered as acid, and the substance which accept proton in bracket H plus ion is called as base. Third thing, this is applicable in aqueous and non-aqueous condition. Arrhenius किसमें होता है? एक्वस कंडीशन, ये दोनों में रहेगा, एक्वस और नॉन एक्वस। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। इसके हिसाब से एसिड प्लस बेस, इसने क्या बोला? ये बोलेगा पानी नहीं मिलेगा,
बस शॉर्ट नहीं मिलेगा। समझा? तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। ये आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि अमोनिया बेसिक क्यों है। ओके, लेट्स ट्राई। अमोनिया, नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन विद लोन पेयर। If I ask about what is the hybridization state of nitrogen, so hybrid orbital equals to number of sigma bonds plus lone pair. How many sigma bonds are there? 3 plus 1 lone pair is there. So 4. So hybridization will be sp1 p2 p3 sp3. So hybridization will be sp3. Geometry will be trigonal pyramidal. Okay. एक बार छूट गई थी प्रोटॉन वाली, मैं बोल देता हूँ। Here, this is hydrogen, atomic number 1, atomic mass number 1, neutral hydrogen. So, number of protons will be 1, number of electron will be 1, and number of neutron will be 0. Okay. If they lose 1 electron, then it will be H plus. Atomic number will be 1, atomic mass number will be 1. So, number of protons will be 1, electrons will be 0. न्यूट्रॉन्स विल बी 0. इसके पास ओनली प्रोटॉन है, एंड दैट्स व्हाई दिस H प्लस आयन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटॉन. ठीक है, H प्लस आयन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटॉन. H का मतलब प्रोटॉन नहीं है, H प्लस का मतलब प्रोटॉन है. ओके, सो H प्लस आयन इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटॉन. किसी ने पूछा भाई इसके पास एक ही प्रोटॉन है ना, तो H प्लस आयन का मतलब इक्विवेलेंट क्या होगा? प्रोटॉन. ओके, the substance which give H plus ion is called as acid, and the substance which give OH minus ion RNAs. The substance which accept proton is called as base. Okay. अब क्रोनस्टेड एंड लॉरी प्रोटॉन के हिसाब से है. एक प्रोटॉन देता है, दूसरा प्रोटॉन लेता है. PPN. क्रोनस्टेड एंड लॉरी प्रोटॉन के हिसाब से प्रोटॉन देगा, एसिड प्रोटॉन लेगा, वो बेस. ओके, नाउ we know about the bond. बॉन्ड किस प्रकार से बनता है? दोनों के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. दूसरा कंडीशन, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए. 2 कंडीशन. सेकंड, थर्ड कंडीशन कोऑर्डिनेट के लिए क्या है? देखो, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड व्हाट इज द कंडीशन? वन एटम, बोथ एटम शुड मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन. फॉर आयोनिक बॉन्ड, one having positive charge, second having negative charge. What is the condition for coordinate bond? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक होना चाहिए डोनर, दूसरा होना चाहिए एक्सेप्टर. डोनर के पास होना चाहिए लोन पेयर, एक्सेप्टर के पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है, अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन रिच कैसे पता चलेगा? इफ any atom having electrons will be less than 8, so it considered as electron deficient. If any atom having electrons is greater than 8 is considered as electron rich. Any atom having electrons equals to 8, it is called as electron precise. Any atom having electrons equals to 8 including lone pair or negative charge is considered as electron rich. Okay, now this nitrogen, how many electrons are there? 2, 2, 2 and 2. How many electrons? 8. 8 electrons with lone pair means nitrogen is electron rich. Here having H plus 1 and H minus 1. H having electronic configuration 1s1, H plus having 1s0 and H minus is 1s2. This is 1s orbital, this is 1s orbital, this is 1s orbital. Here having 1 electron, 0, here having 2 electron. इन तीनों में से कौन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और क्यों? 30 सेकंड.
Done? H plus 1, H minus H. इधर अलग H ओके। बॉन्ड बनने के लिए दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास अनपेड है, पेड है? ये लोन पेयर है। लोन पेयर अनपेड होता है, पेड होता है? लोन पेयर का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ लोन पेयर। इट मींस दिस इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड और ये अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनपेयर्ड के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनता है। किसके बीच में बनता है? अनपेयर्ड अनपेयर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव और डोनर और एक्सेप्टर। ये किसका काम कर सकता है? डोनर का, एक्सेप्टर का? एक्सेप्टर होने के लिए क्या होनी चाहिए? जगह खाली होनी चाहिए। नाइट्रोजन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल? Nitrogen, that is 2s2 and 2p3. This is s orbital and this is p orbital. Okay. s having how many electrons? 2. इसी की वजह से लोन पेयर है। This is 1, this is 1, this is 1. Orbitals are 4. 1, 2, 3, 4. अब लोन पेयर में तो ये चली गई। बॉन्ड कितने बनाए? 3। तो 1, 2, 3 चले गए। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? नहीं। इसका मतलब ये किसका काम नहीं कर सकता? अरे आपके घर में जगह खाली होगी, कोई किसी को बुलाओगे ना, तो आप किसका काम कर पाओगे? एक्सेप्टर का। अब आपके घर में जगह खाली नहीं, तो आप किसका काम नहीं कर पाओगे? डोनर का काम करोगे कि नहीं करोगे वो बात है, लेकिन एक्सेप्टर का काम नहीं कर पाओगे। अब आपका कोई दोस्त है जो आपको बुला रहा है, उसके घर में जगह खाली है, तो वो किसका काम करेगा? और आप जाओगे किसका काम करोगे? तो जाने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए ना जाने के लिए। अब आपके घर में कोई नहीं है तो आपके घर में से किसको बुलाएगा वो? तो जाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है और ये किसका काम कर सकता है? डोनर। डोनर होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, मतलब दिस विल एक्ट एज अ डोनर। इन तीनों में से विच विल एक्ट एज अ एक्सेप्टर? H। एक्सेप्टर होने के लिए ऑर्बिटल मस्ट बी एम्प्टी। दिस इज एम्प्टी और हाफ फिल्ड? दिस इज फॉर एक्सेप्टर ऑर्बिटल मस्ट बी एम्प्टी। किसके पास है? तो ये तीनों में से किसके साथ बॉन्ड बनेगा? समझा नहीं समझा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। वन विल बी डोनर, सेकंड विल बी एक्सेप्टर। डोनर के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। एक्सेप्टर होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो ये नाइट्रोजन इन तीनों में से किसको बुलाएगा? अब ये H+ साइड इसके पास जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, ये नया बॉन्ड हाइड्रोजन। जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें एरो दिखाते हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कि कौन डोनर का काम करेगा, कौन एक्सेप्टर का काम करेगा। इसमें डोनर का काम कौन कर रहा है? तो दैट बॉन्ड विल लुक लाइक दिस वन। ओके, सही। इसमें डोनर कौन है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा प्लस, और हाइड्रोजन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज क्या रहेगा? माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी चार्ज कौन था? प्लस वन। तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस मॉलिक्यूल को लिखेंगे हम लोग NH4+। In this molecule, this nitrogen is act as a proton donor or proton acceptor. This nitrogen is having how many hydrogen now? Here. It means that nitrogen will accepted one electron or donated one electron? Accepted. So here this nitrogen is a proton donor, proton acceptor.
हाँ? अरे यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इस नाइट्रोजन पे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया कि प्रोटॉन डोनेट किया? पहले कितने हाइड्रोजन थे? अभी कितने हैं? 3 के 4 हो गए, मतलब एक्सेप्ट किया है डोनेट किया? एक्सेप्ट किया। और जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड दैट्स व्हाई अमोनिया इज नाइट्रोजन इज अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा एंड दैट्स व्हाई दिस एक्ट एज अ बेस। सही है? तो इन्होंने बोला था कि अमोनिया बेसिक अमोनिया NH3 प्लस HCl। HCl क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। H+ आयन देगा ना, तो इट एक्ट एज अ एसिड। अमोनिया इट इज बेस। अब जो H+ आयन हाइड्रोजन देगा वो किसके पास जाएगा? नाइट्रोजन। तो ये क्या बनेगा? NH4+ और क्या बचेगा? Cl-। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। ठीक है? तो एसिड प्लस बेस इट गिव सॉल्ट। ओके, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? द सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड एंड द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेस। ओके, नाउ दिस इज C double bond O attached to O minus, attached to O minus. This can donate proton. This can accept proton. Okay, proton का मतलब क्या होता है? चार्ज कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा O minus attached to C double bond O attached to H। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को डोनेट किया। तो ये किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? बेस का। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। CO3-2 जो रहेगा वो किसका काम करेगा? बेस का। ठीक है? अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। एक न्यू टर्म है। अब कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है वो देखते हैं। Whenever any acid का मतलब which donates proton, तो जब ये एसिड प्रोटॉन देगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। जो बेस है ये बेस क्या करेगा? प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? व्हेन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एसिड H+ आयन देगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस क्या करेगा? H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। एग्जांपल, हमारे पास HCl है, क्या डोनेट करेगा? H+, तो क्या बचेगा? Cl-। ये कौन है? एसिड। इसने क्या किया? H+ आयन डोनेट किया, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। Here NH3 एसिड है, बेस है। बेस क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा NH4+। तो ये किसका काम कर रहा है? तो ये क्या बनेगा? तो मैंने आपको बोला है किसी का कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, तो काम किसका करना चाहिए? एसिड का। किसी का कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो काम किसका करेगा? बेस का। बेस का काम करेगा इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, एसिड का काम करेगा इट विल डोनेट प्रोटॉन। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर H2SO4। दिस कैन डोनेट प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन। हाउ मेनी acidic hydrogens are there? They can donate both H+ and at a time? No.
So if they are donating H plus ion converted into HSO4 minus 1, सही है। तो ये किसका काम कर रहा है? एसिड, और इधर जाएगा तो क्या डोनेट लूज करेगा? H प्लस आयन। तो ये बन जाएगा एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। इफ वापस आते हैं तो ये क्या करेगा? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब HSO4 minus 1 H plus ion को एक्सेप्ट करेगा तो it is converted into H2SO4. So this molecule accepted H plus ion or removed H plus ion? Accepted. So this will act as a base. So this will be conjugated acid. Okay. One more H plus ion is there. So they can donate one more H plus ion, so it is converted into SO4 minus 2. तो हम यहाँ से इधर जा रहे हैं। Proton donate accepted. Donate. So loss of H plus ion. So this will act as a acid. This will be conjugated base. Here they are accepting H plus ion. तो वापस आ रहे हैं तो उसने क्या किया? H plus ion को डोनेट किया, एक्सेप्ट किया। और तो H plus ion को एक्सेप्ट करेगा वो किसका काम करेगा? बेस। तो ये किसका काम करेगा? ये क्या बन जाएगा? अब आप मुझे बताओ, ये प्रोटॉन दे सकता है? प्रोटॉन ले सकता है? मतलब 100% दिस एक्ट एज अ बेस। This will donate proton. This can accept proton. No. This act as a acid. This can donate proton. Yes. This can accept proton. Yes. So this is amphoteric. This is amphoteric. तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो H प्लस आयन देगा और H प्लस आयन लेगा। ठीक है, हम यहाँ से इधर आए तो ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर आए किसका काम करेगा? कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ से इधर आए ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर आए ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर आए ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर आए क्या डोनेट किया? इसने डोनेट किया ना, तो ये किसका काम करेगा? और ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ से इधर गए ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर गए ये किसका काम करेगा? हाँ, ये किसका काम करेगा? यहाँ से इधर आए ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? समझा नहीं समझा? तीसरा H3PO4. How many acidic hydrogens are there? Huh? 3? Okay. It is converted into H2PO4 minus 1. Again, converted into HPO4 minus 2. Again, converted into PO4 minus 2. Okay. Here, I am going from this side to this side. Loss of proton, gain of proton. Loss of proton. This will act as a acid. This will be going from this side to this side. Loss of proton, gain of proton. This will be acid. This will be going from this side to this side. Loss of proton. This will be acid. This will be from this side to this side. Gain of H plus ion. This will be base. This will be conjugated acid. यहाँ से इधर आए H plus ion को gain किया. This will be base. This will be conjugated acid. यहाँ से इधर आए H plus ion को accept किया. This will be base. This will be conjugated acid. ये किसका काम करेगा? हमेशा। ये किसका काम करेगा? हमेशा। ये किसका काम करेगा? दोनों का काम करेगा। कभी एसिड का काम करेगा, कभी बेस का काम करेगा। H प्लस आयन दे भी सकता है, H प्लस आयन ले भी सकता है। ये क्या करेगा? समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, समझा? तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का मतलब होता है, आपको पूछा कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ, काम किसका करेगा? एसिड का। आपको बोला कॉन्जुगेटेड बेस एसिड बनाओ, तो काम करेगा बेस का। समझा नहीं समझा? इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज देयर तो इट्स कॉन्जुगेटेड बेस विल बी वीक। If acid is strong, so their conjugated base is weak. If acid is weak, their conjugated base will be strong. If strong base is there, weak conjugated acid. If weak base is there, that will be strong conjugated acid. ठीक है, तो strong acid हमेशा वीक कॉन्जुगेटेड बेस देगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा था ये वाला, ये जो बेस है ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन डोनेट। जैसे हम इसकी बात करते हैं, NH3 इज कन्वर्टेड इनटू NH4+, यहाँ से इधर है, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, डोनेट किया, मतलब 100% ये किसका काम करेगा? बेस का। तो ये किसका काम करेगा? कॉन्जुगेटेड एसिड का। अमोनिया इज अ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है? H में से लिथियम को छोड़ दो, और सॉरी ग्रुप 1 में से लिथियम को छोड़ दो, ग्रुप 2 में से बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो, तो बाकी जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग, और उनको छोड़ के बाकी जो रहेंगे वो वीक। तो ये किसका काम करेगा? वीक बेस। सो दिस बेस इज वीक, so this will be strong. Okay, this HCl ने H+ आयन डोनेट किया, क्या बना? Cl-। तो ये एसिड है, तो ये क्या रहेगा? कॉन्जुगेटेड बेस। ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, तो कॉन्जुगेटेड बेस कैसा रहेगा? वीक। समझा? तो ये होता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का पेयर। ठीक है, तो हमारे ड्रॉबैक थे अमोनिया, ये क्लियर हो गया। दूसरा ड्रॉबैक था CO2 CO3-2, ये भी क्लियर हुआ। फिलहाल ये दोनों बाकी है, इसके लिए हमको नेक्स्ट वाले थ्योरीज का इंतजार करना होगा। देख लो एक बार, देखना है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं समझा तो पूछना है। मतलब एसिड कॉन्जुगेटेड बेस ये पेयर में होते हैं, बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड ये पेयर में होता है। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके पास OH नहीं होता है, और जो किसका काम करेंगे? बेस का। साथ में इसका एक और एडवांटेज है, पहले थ्योरी ओनली एक्वस कंडीशन में थी, ये एक्वस और नॉन एक्वस, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक्वस रहेगा तो भी चलेगा, और नॉन एक्वस रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, ओके है, राइट।